Hello friends, welcome to the student world. Today we will discuss about cDNA library construction. First of all, we try to understand why we prepare cDNA library. हम cDNA library क्यों बनाते हैं? To study the expression of a gene at any instant in an organism or in a tissue or in a cell, we prepare these libraries using मैसेंजर आरएनए एज ए सबस्ट्रेट। लाइब्रेरीज दो तरह की होती हैं, एक आपका जीनोमिक लाइब्रेरी और एक cDNA लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी जो हम यूज़ करते हैं वो हम जीन एनालिसिस करने के लिए करते हैं, और cDNA लाइब्रेरी जो हम यूज़ करते हैं वो किसी भी एक सेल में या किसी भी एक टिश्यू में किसी भी एक टाइम पर जो उसका टोटल mRNA एक्सप्रेस हुआ उस mRNA के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए हम cDNA लाइब्रेरी बनाते हैं। अब जीन एक्सप्रेशन क्या है? जीन एक्सप्रेशन इज प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अ जीन। एक जीन से एक प्रोटीन के बनने को हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। जीन एक्सप्रेशन हैज़ टू स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज ट्रांसक्रिप्शन, in which messenger RNA is prepared from DNA with the help of enzyme RNA polymerase. Second step, from this messenger RNA, protein is produced in a process known as translation. Now when our aim was to study the expression of these genes in a cell, then we prepare cDNA library. Actually cDNA library represent the messenger RNA content of a cell in a particular situation. For example, as we know, genome represent the all set of genes, whereas cDNA library represent the expression of genes at a single instant. All genes are not expressed in all cells. For example, if we take the example of insulin gene, this gene is expressed only in pancreatic cells. Now if we want to study the expression of this gene, then we have to consider the mRNA encoded by this gene, because messenger RNA cannot be cloned directly, so we have to make the complementary DNA, which we call cDNA, using messenger RNA as a template with the help of enzyme reverse transcriptase. Reverse transcriptase is the enzyme which catalyzes the synthesis of DNA from RNA, that is reverse transcription. Now, what is this cDNA? cDNA is actually, it is the representative of the messenger RNA that is expressed in a cell or tissue. Now how we prepare this cDNA? We prepare this cDNA by using messenger RNA as a template with the help of enzyme reverse transcriptase. First of all, reverse transcriptase form single stranded DNA from messenger RNA, which is then copied by DNA polymerase to form double stranded complementary DNA. In short, we call complementary DNA as cDNA. Let's talk about reverse transcriptase. Reverse transcriptase is an enzyme that catalyzes the synthesis of DNA from RNA, that is reverse transcription. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है जो आरएनए से डीएनए बनाता है। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है। ये एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, डीएनए बनाता है आरएनए से। दैट द एंजाइम विच कैटालाइजेस द सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये एंजाइम आरएनए को एज ए टेम्पलेट यूज़ करके उससे डीएनए बनाता है, डीएनए की सिंथेसिस करता है। इसीलिए इस एंजाइम को आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। नाउ टू फॉर्म्स ऑफ दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आर कॉमर्शियली अवेलेबल। एक को हम एएमवी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं और दूसरे को एमओएमएलवी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। ये नाम इस बेसिस पर हैं कि हम इस एंजाइम को कहाँ से आइसोलेट करते हैं।
तो AMV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है ये एवियन माइलोब्लास्टोसिस वायरस से आइसोलेटेड है। एवियन वर्ड बर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये वायरस बर्ड्स को अटैक करता है। तो एवियन माइलोब्लास्टोसिस वायरस से हम इस एंजाइम को आइसोलेट करते हैं, इसलिए इसे AMV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। और दूसरा एंजाइम हम ई कोलाई से आइसोलेट करते हैं। ई एक्सप्रेस करती है इस एंजाइम को, और ये एंजाइम की जो जीन है वो ई कोलाई के अंदर क्लोन की जाती है। तो ये जो जीन है बेसिकली मोलिनी म्यूरिन ल्यूकेमिया वायरस की ये जीन है, और इस जीन को हम ई कोलाई के अंदर क्लोन करते हैं। इस एंजाइम को हम MOMLV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के। दोनों ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के अंदर दो एक्टिविटी होती हैं, एक DNA सिंथेसिस की एक्टिविटी और दूसरी RNase H एक्टिविटी। RNase एक्टिविटी क्या है? RNA DNA हाइब्रिड में से RNA को डिग्रेड करने की एक्टिविटी को हम RNase H एक्टिविटी, ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। एक्सो मीन्स बाहर से एक एक न्यूक्लियोटाइड काटी जाती है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम RNA DNA हाइब्रिड में से RNA को डिग्रेड करता है, क्लीव करता है। उस एक्टिविटी को हम RNase H एक्टिविटी कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो हम cDNA लाइब्रेरी बनाने में यूज़ करते हैं, इसके अंदर दो एक्टिविटीज़ होती हैं। पहली DNA सिंथेसिस की एक्टिविटी, RNA को टेम्पलेट करके DNA बनाना, और दूसरी RNase H एक्टिविटी, RNA DNA हाइब्रिड में से RNA को डिग्रेड करना। Now we see few characteristics of cDNA that were not present in genomic DNA. The first difference between cDNA and genomic DNA is that in genomic DNA both introns and exons are present, but in cDNA introns are absent because cDNA is copied from mature messenger RNA and messenger RNA do not have these introns. These introns are spliced out during RNA processing. जीनोमिक DNA के अंदर एक्सोन और इंट्रोन दोनों होते हैं। जब DNA से मैसेंजर RNA बनाया जाता है, प्री मैसेंजर RNA, तो उसके अंदर भी एक्सोन और इंट्रोन्स दोनों होते हैं। फिर इस mRNA की प्रोसेसिंग की जाती है। उस प्रोसेसिंग में हम 5' एंड पर कैप लगाते हैं, 3' एंड पर टेल लगाते हैं और इन इंट्रोन्स को हटाते हैं, रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद जो मैच्योर मैसेंजर RNA बनता है उसके अंदर सिर्फ एक्सोन्स ही होते हैं। क्योंकि cDNA को हम मैच्योर mRNA से बनाते हैं, इसलिए cDNA के अंदर इंट्रोन्स नहीं होते। इंट्रोन्स जो है बैक्टीरिया का जो जीनोमिक DNA होता है उसके अंदर भी नहीं होते, इसीलिए बैक्टीरिया के अंदर mRNA प्रोसेसिंग नहीं होती जिसमें हम इंट्रोन्स को रिमूव करते हैं। इफ़ वी हैव टू क्लोन the genomic DNA of eukaryote in a bacteria, then there is no machinery by which we can remove these introns. In that case, it is advantageous if we use DNA for cloning. Second point is that the regulatory sequence such as promoter or enhancer, they are also absent in cDNA. Because cDNA is made from mRNA and mRNA didn't have these sequences such as promoter or enhance. These sequences are present only in genomic DNA. Now if we have to express this cDNA in a bacteria or in a cell, then we have to provide these regulatory sequence along with the cDNA. Third major difference is of size. The size of genomic DNA is more compared to cDNA because introns are present in the genomic DNA and the length of these introns are more. For example, they see human dystrophy gene, it contains 79 introns and the size of this gene is 2.55 MB. But when we prepare cDNA from this gene, then the size of cDNA is only 11. Now, how we will define cDNA library? cDNA library is a collection of cloned DNA sequence that are complementary to the messenger RNA that we have isolated from a cell. Actually, cDNA library
एक क्लोन्स का कलेक्शन है, एक पॉपुलेशन है, और वो क्लोन्स के अंदर हमारा cDNA है जो हमने मैसेंजर RNA से बनाया है। तो एक सेल का फुल जो सेट है mRNA का, उसे रिवर्स ट्रांसक्राइब करके हमने cDNA बनाया, और cDNA को हमने एक वेक्टर में लाइगेट करके एक बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराया। तो वो जो बैक्टीरियल सेल्स हैं, पॉपुलेशन है उन बैक्टीरियल सेल्स की, दैट रिप्रेजेंट आवर cDNA लाइब्रेरी। तो cDNA library is a collection of clones that carry complementary DNA that we prepare from messenger RNA which was isolated from a cell or a tissue at a specific situation or at an instant. Now come to the main topic, how we prepare cDNA library. cDNA library construction involve following basic steps. First of all, we isolate messenger RNA from a cell and then purify it by column chromatography. After purification of messenger RNA, we use it as a template and synthesize cDNA from it with the help of enzyme reverse transcription. After synthesis of cDNA, we ligate this cDNA in a suitable vector. After formation of recombinant vector, we introduce this vector in a suitable host, and in this way a cDNA library is constructed. Now we study each step in detail. First step is the extraction of messenger RNA from a cell or a tissue. सबसे पहले हम किसी भी एक सेल जिसका भी हमें जीन एक्सप्रेशन स्टडी करना है, उससे हम टोटल मैसेंजर RNA पॉपुलेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मैसेंजर RNA हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? सबसे पहले हम एक सेल लेते हैं, उस सेल को हम ग्वेनिडियम थायोसाइनेट फिनोल ट्रीटमेंट देते हैं। इस ट्रीटमेंट से क्या होता है, सेल का लाइसिस हो जाता है, जो प्रोटीन है वो सारा डीनेचर हो जाता है, जो न्यूक्लियेजेस हैं जो आरएनए को डाइजेस्ट कर सकते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, और सारी जो डीएनए आरएनए पॉपुलेशन है वो सारी आपकी सॉल्यूशन में आ जाती है। उसके बाद हम क्लोरोफॉर्म ऐड करते हैं और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सॉल्यूशन के अंदर हमारे दो फेज़ आ जाते हैं। अपर फेज़ को हम एक्विस फेज़ कहते हैं और लोअर फेज़ ऑर्गेनिक फेज़ होता है क्योंकि वो हैवी होता है। एक्विस फेज़ के अंदर हमारा आरएनए है, हम इस एक्विस फेज़ को एक अलग एपेंड्रॉफ के अंदर कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम आइसोप्रोपेनॉल डालते हैं। आइसोप्रोपेनॉल डालने के बाद आरएनए जो है वो प्रिसिपिटेट बना लेता है और नीचे सेटल हो। आरएनए आइसोलेशन के बाद हम टोटल सेलुलर आरएनए में से मैसेंजर आरएनए को प्योरीफाई करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी की हेल्प। कॉलम क्रोमेटोग्राफी का हम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं मैसेंजर आरएनए को प्योरीफाई करने के। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, हम कॉलम से कोई ऐसी चीज़ अटैच कर देते हैं जो उस मॉलिक्यूल के लिए एफिनिटी रखता है जिस मॉलिक्यूल को हमें प्योरीफाई करना होता है। अब हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए के 3 प्राइम एंड पर पोली ए टेल होती है, यानी कि एडेनिन के बेसिस लगे हुए होते हैं जिसे हम पोली ए टेल कहते हैं। अब ये जो पोली ए टेल है ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है पोली टी के। तो हम क्या करते हैं, पोली टी की एक टेल कॉलम पर लगा देते हैं जिसे हम ओलिगो डी सेलुलोज कॉलम के। सेलुलोज जो है वो एक सॉलिड मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स से हम टी की एक छोटी सी चेन लगा देते हैं जिसे हम ओलिगो डी चेन कहते हैं। अब इस कॉलम के थ्रू आप डायग्राम के अंदर देखो, एक कॉलम हमने बनाया हुआ है और उस कॉलम के लेफ्ट में हमने दिखाया हुआ है ओलिगो डी सेलुलोज। ये जो गोल आपकी रिंग है ये सेलुलोज मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स से हमने ये टी की टेल जोड़ी हुई है। ये पूरा मैट्रिक्स इस कॉलम के अंदर भरा हुआ है। अब इस कॉलम के अंदर हम टोटल आरएनए जो हमने पिछले स्टेप में आइसोलेट करा वो इसके अंदर हम पोर कर। अब क्योंकि मैसेंजर आरएनए के अंदर ए की टेल है तो वो ए इस टी से बाइंडिंग कर लेगा और जो आपके आरएनए हैं जैसे राइबोसोमल आरएनए है, टी आरएनए है, वो आपके जो है रिलीज हो जाए। ये जो हमने आरएनए शुरू में लिया है इसके अंदर हम इसे पहले हाई सॉल्ट बफर के अंदर डिजोल्व करके रखते हैं।
हाई सॉल्ट बफर इसलिए डालते हैं क्योंकि ये जो टी और ए की एसोसिएशन बनेगी प्योरीफिकेशन में, इस एसोसिएशन को ये स्टेबलाइज करता है और फर्दर स्ट्रॉन्ग बना। उसके बाद जब राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए अलग हो जाते हैं तो मैसेंजर आरएनए को हमें कॉलम से निकालना होता है। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इल्यूजन बफर डालते हैं और इसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम डालते हैं, जिससे कि ए और टी की एसोसिएशन वीक हो जाए और आपका मैसेंजर आरएनए जो है वो सॉल्यूशन से निकल जाए। इस तरह से आपका मैसेंजर आरएनए जो सेलुलर आरएनए हैं उनसे अलग हो जाता है। आफ्टर प्योरिफिकेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम टोटल सेलुलर आरएनए, the next step is the construction of cDNA from this messenger RNA. The synthesis of cDNA involve three basic steps. First of all, messenger RNA is used as a template and single stranded complementary DNA is made from the messenger RNA with the help of enzyme reverse transcriptase. After the synthesis of this cDNA, the RNA's H activity present in the reverse transcriptase enzyme is used to degrade the RNA template. After the degradation of the RNA, cDNA is used as a template and complementary DNA is made with the help of enzyme DNA polymerase. The DNA polymerase used in this case is E. coli DNA polymerase. In this way, double-stranded cDNA is prepared from messenger RNA. Now we study the synthesis of cDNA in two parts. In first part, we study the synthesis of first strand of cDNA from messenger RNA. This synthesis involves three methods. In first method, we use oligo-D as primer. In second method, we use gene specific primers, and in third method we use random primers which are 6 nucleotide in length. Now we study in detail each method one by one. First of all, we study first strand cDNA synthesis by using oligo-DT as primer. This method take advantage of poly A tail that is present at the 3' end of the messenger RNA. In this case, we take messenger RNA, and messenger RNA we know have poly A tail at 3' end. We take oligo-DT as a primer. Oligo-DT primer is a chain of TTT base pairs. This DT primer has complementary pairing with A, that's why it binds to the 3' end of the messenger RNA. You see in the diagram there is shown a mRNA which have a poly A tail at the 3' end. When we add DT primer, oligo-DT primer, it binds at the 3' end. After binding of the primer, this primer is extended with the help of enzyme reverse transcriptase using DNTPs. Reverse transcriptase enzyme oligo-DT primer को extend करेगा और cDNA बनाएगा। इस तरह पहला स्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री DNA का सिंथेसाइज हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से। In second method, we use gene specific primers. Now what are these gene specific primers? These primers are synthetic oligonucleotides that are complementary to the 3' untranslated region of the messenger RNA. जिस मैसेंजर आरएनए को से हम cDNA बनाना चाहते हैं उस मैसेंजर आरएनए के 3' एंड का कॉम्प्लीमेंट्री ये प्राइमर होता है। ये प्राइमर जो है जाकर 3' एंड पर बाइंड हो जाता है। उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है इस प्राइमर को एक्सटेंड करता है और कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाता है। इन थर्ड मेथड वी यूज रैंडम हेक्सान्यूक्लियोटाइड प्राइमर। इस मेथड के अंदर हम छोटे छोटे प्राइमर्स यूज़ करते हैं और ये प्राइमर्स किसी भी सीक्वेंस के लिए स्पेसिफिक नहीं होते, तो ये रैंडमली मैसेंजर आरएनए के बीच की किसी भी सीक्वेंस पर बाइंड कर जाते हैं। ये मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा टारगेट आरएनए बहुत लंबा हो या उसके अंदर बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बन रहे हों और वो जो पहले दो मेथड हमने पढ़े हैं वो इस पर फेल हो रहे हों। तब हम ये
मेथड यूज़ करते हैं। इस मेथड के अंदर हम मैसेंजर आरएनए लेते हैं और फिर उस पर हम हेक्सान्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स ऐड कर देते हैं। ये प्राइमर्स पूरे एमआरएनए पर जगह जगह पर ऐड हो जाते हैं। उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आता है और इन प्राइमर्स को जो है एक्सटेंड करके cDNA बनाता है। लास्ट में DNA लाइगेज एंजाइम आता है और इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को जोड़ दे और इस तरह फर्स्ट स्ट्रैंड ऑफ cDNA इज सिंथेसाइज्ड by using random oligonucleotide primers. After first strand synthesis, second strand is also synthesized by three methods. First method is by self-priming method, second is replacement method, and third is homopolymer method. First of all, we will study the second strand cDNA synthesis by self-priming method. In self-priming method, after synthesis of first strand of cDNA, the RNA template is cleaved with the help of RNase H activity present in reverse transcriptase enzyme. जब फर्स्ट स्ट्रैंड cDNA सिंथेसिस हो जाती है उसके बाद हम mRNA को डिग्रेड कर देते हैं RNA H एक्टिविटी से। अब ये जो cDNA है इसका जो 3 प्राइम एंड है वो अपने आप एक लूप बना लेता है। ये लूप जो है 3 प्राइम OH प्रोवाइड करता है और इस 3 प्राइम OH को DNA पॉलीमरेज 1 एक्सटेंड करके सिंथेसिस कर देते। सिंथेसिस होने के बाद ये जो हेयर पिन लूप है ये एक एंजाइम ट्रीटमेंट से काटा जाता है। वो एंजाइम है S1 न्यूक्लियस। X1 न्यूक्लियस क्या है, जहाँ पर भी सिंगल स्टैंडर्ड DNA होता है वहाँ पर ये कट लगाता है। तो जहाँ पर लूप है वहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड DNA अवेलेबल होता है तो S1 न्यूक्लियस वहाँ पर कट लगाता है और इस लूप को काट देता है। इस तरह डबल स्टैंडर्ड cDNA बन जाता है। सेल्फ प्राइमिंग मेथड से जो हम कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाते हैं, इस मेथड का एक डिसएडवांटेज है कि जब हम हेयर पिन लूप काटते हैं तो cDNA की कुछ सीक्वेंस वहाँ से लॉस्ट हो जाती है। तो ये जो cDNA mRNA को रिप्रेजेंट कर रहा है उस mRNA के 5 प्राइम एंड की कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है। इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हम सेकेंड स्ट्रैंड cDNA सिंथेसिस रिप्लेसमेंट मेथड से कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट मेथड में क्या है, जब मैसेंजर आरएनए पर फर्स्ट स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री DNA की सिंथेसिस हो जाती है उसके बाद mRNA को हम कम्प्लीटली नहीं हटाते बल्कि हम उसके अंदर निक जनरेट करते हैं। निक का मतलब हम जो फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन है आरएनए के अंदर हम उस बैकबोन को तोड़ते हैं। तो हम पार्शियल RNase H ट्रीटमेंट देते हैं। इसमें क्या है, आरएनए के अंदर बीच बीच में कट लगता है। कट लगने के बाद 3 प्राइम OH जनरेट हो जाता है और DNA पॉलीमरेज फर्स्ट क्या है, इस निक को यूज़ करके RNA हटाता जाता है और DNA सिंथेसिस करता है। उसके बाद लास्ट में ये जो DNA के छोटे छोटे स्टैंड्स बने इन्हें DNA लाइगेज सील कर देता है और कंप्लीट डबल स्टैंडर्ड cDNA बन जाता है। In third method of second strand cDNA synthesis, we add tail to first strand of cDNA with the help of enzyme terminal transferase. इस मेथड में mRNA से जब हम फर्स्ट स्ट्रैंड cDNA बना लेते हैं तो हम RNA डिग्रेड करने से पहले उस cDNA के 3 प्राइम एंड पर CCC न्यूक्लियोटाइड की एक टेल लगा देते हैं टर्मिनल ट्रांसफेरेज एंजाइम की हेल्प से। टेल लगाने के बाद हम आरएनए को एल्काली ट्रीटमेंट देकर हटा देते हैं। उसके बाद हम सेकेंड स्ट्रैंड जो डीएनए का बनाते हैं उस पे सी की कॉम्प्लीमेंट्री पॉली डीजी एज ए प्राइमर हम यूज़ करते हैं और ये पॉली डीजी जो है वो बाइंड कर देगा टू द पॉली डीसी टेल। उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है इस पॉली डीजी को एक्सटेंड करेगा और डबल स्टैंडर्ड cDNA जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। आफ्टर सिंथेसिस ऑफ cDNA फ्रॉम मैसेंजर RNA वी लाइगेट दिस cDNA इन अ वेक्टर। cDNA बनने के बाद हम इन cDNA को अलग अलग वेक्टर के अंदर लाइगेट करके बहुत सारे रिकम्बिनेंट वेक्टर्स बनाते हैं। अब रिकम्बिनेंट वेक्टर बनाने के लिए ये जो cDNA है इसके दोनों एंड्स पर ब्लंट एंड है
तो हम इस पर स्टिकी एंड जनरेट करते हैं एडेप्टर या लिंकर लगाकर। अब डायग्राम में आप देखिए EcoR1 एडेप्टर हम लगाते हैं डबल स्टैंडर्ड cDNA के दोनों एंड्स पर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम T4 DNA लाइगेज। एडेप्टर्स के अंदर पहले से ही बने हुए स्टिकी एंड्स होते हैं। अब ये जो cDNA है जिस पर हमने EcoR1 एडेप्टर्स लगाए, अब हम इसे उठाएंगे और वेक्टर के अंदर लगा देंगे। वेक्टर को भी हम सेम उसी एंजाइम से काटेंगे जिसका एडेप्टर हमने cDNA पर लगाया है। तो हम वेक्टर का इक्वारेंडाइजेशन देंगे और फिर इस कटे हुए वेक्टर के अंदर हम ये जो cDNA है इसे उठाकर लगा देंगे और DNA लाइगेज से कि जो निक यहाँ पर रह गई है उसे सील कर देंगे और इस तरह से रिकम्बिनेंट वेक्टर बन जाए। फाइनली ये जो रिकम्बिनेंट वेक्टर हमने बनाए हैं, इन रिकम्बिनेंट वेक्टर्स को हम बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम उस बैक्टीरियल सेल को ट्रांसफॉर्म्ड सेल कहते हैं। ट्रांसफॉर्म्ड सेल वो होती है जिसके अंदर रिकम्बिनेंट वेक्टर प्रेजेंट होता है। अब सेल ट्रांसफॉर्म हुई या नहीं इसका सिलेक्शन हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से करते हैं जिसकी जीन प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर होती है। वेक्टर जाने के बाद जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है वो भी आपकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस गेन कर लेती है प्लाज्मिड की हेल्प से। अब ये जो बहुत सारी आपकी ट्रांसफॉर्म्ड इकोलाई सेल्स बनी हैं, इन सेल्स के अंदर ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा और हमारे cDNA की बहुत सारी कॉपीज़ बना। एट लास्ट we summary the whole process of cDNA library construction. In cDNA library construction, first of all, we extract the total messenger RNA from an organism. From this messenger RNA, we prepare complementary cDNA with the help of enzyme reverse transcriptase. After synthesis of this cDNA, we ligate this cDNA in a plasmid and form recombinant vector. After formation of recombinant vector, we introduce these vectors in the bacterial cell. Now these clones of bacterial cells represent the cDNA library. Thank you. If you like the video, please subscribe.